क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी जल्दी नोट करते जाना, ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस हैं, हमें नेक्स्ट 1 आवर में वो कंप्लीट करना है. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 और यहां पर आ गया 5. एक्स नॉट इक्वल्स टू 3, एक्स इक्वल्स टू 3. क्वेश्चन नंबर 2, f of x is equals to sin 3x upon x and 1. कंडीशन है x नॉट इक्वल्स टू 0 और यहां पर है x इक्वल्स टू 0. क्वेश्चन नंबर 3, f of x is equals to e raised to power 1 by x when x is not equals to 0 and 1 when x is equals to 0. Question number 4, f of x is equals to 1 minus cos x divided by x square when x is not equals to 0 and 1 when x is equals to 0. Question number 5, f of x is equals to x minus mod x by 2 and 2. This condition is when x is not equals to 0 and x is equals to 0. Question number 6, f of x is equals to mod x minus a upon x minus a. Condition is x not equals to a और ये है 1 when x is equals to a. Question number 7, f of x is equals to 1 plus x square 2 minus x. X is greater than or equals to 0, less than or equals to 1. X is greater than 1. Question number 8, f of x is equals to x1 minus x. X greater than 0, x equals to 0, x less than 0. Question number 9, f of x is equals to sin 2x divided by 5x and k. This condition when x is not equals to 0. This condition when x is equals to 0. Question number 10, f of x is equals to ax plus 5 x minus 1, x less than or equals to 2, x greater than 2. Continuous at x is equal to 2, find a. Question number 11, f of x is equals to mod x into cos 1 by x when x is not equals to 0 and 0 when x is equals to 0. Question number 12, f of x is equals to, जल्दी जल्दी नोट करना ना, ये टोटल 20 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट होंगे आज हमें करने, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है. x equals to 0. Next, question number 13, f of x is equals to 1 minus x to the power n upon 1 minus x and n minus 1.
when x is equals to 1, no, sorry, not equals to 1, x is equals to 1. Question number 14. F of x is equals to x upon mod x plus 2x square. X not equals to 0 and it is k when x is equals to 0. Find k. Find k. If continuous. If continuous. Question number 15. F of x is equals to k cos x upon pi minus 2x. X is not equals to pi by 2. 3 when x is equals to pi by 2. Question number 16. F of x is equals to 2x plus 3 sine x upon 3x plus 2 sine x when x is not equals to 0. Then find f of 0 if continuous. If continuous at x is equals to 0. Question number 17. सॉल्व अभी तो नोट कर लो पूरा, ठीक है, आज पूरा सॉल्व करना है, लेकिन f of x is equals to 1 minus cos 4x divided by 8x square, and this is k when x is not equals to 0 and k when x is equals to 0. Find k. फाइंड के, मैं क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख रहा हूं ना, कुछ चीजें खुद समझ जाना है. जहां के फाइंड करने बोल रहा है, ए फाइंड करने बोल रहा है, मतलब फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है. मतलब एलएचएल आरएचएल को हमें क्या लेना है, इक्वल लेना है. क्वेश्चन नंबर 18. f of x is equals to 1 minus cos 2kx upon x square and 8. X is not equals to 0. X is equals to 0. Find k. Find k. Question number 19. F of x is equals to k x square minus 2x, x less than 0, and cos x when x greater than 0. एक दो और क्वेश्चंस बचे, एक दो कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स हैं और इसके कुछ और क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 5 5 6 क्वेश्चंस और है, 6 क्वेश्चंस और मान लो, ऑलमोस्ट 25. ओके, कहां तक नोट डाउन किया वैसे? 16 तक हो गया है. कहां तक हुआ उमांश? सेकेंड. सामने आ जाना, सामने आ जा, इधर आ जा, प्रखर के बाजू. आयुष, जहां से देख रहा है वहां से नोट करना चालू कर ले फटाफट क्वेश्चंस. ऑनलाइन में कौन है? क्या नाम है एक बार बताना, ऑनलाइन में किसने ज्वाइन किया है?
वैष्णवी है क्या? ओके, आई थिंक स्टार्ट करेंगे अब हम लोग। कुछ बच गया तो बाद में करते रहेंगे, फिर नोट डाउन। चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना 1 ऑनवर्ड्स, क्वेश्चन नंबर 1 ऑनवर्ड्स देखते चलो इधर। तो जल्दी जल्दी में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। आप लोगों को सॉल्व करना है, आंसर भी बताना है, फिर मैं बताऊंगा करेक्ट है या रॉन्ग है। ठीक है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, कंटिन्यूस है नॉट कंटिन्यूस? तो चलो ठीक है, चेक करेंगे। कैसे चेक करोगे पहले ये बताओ, क्या डायरेक्टली एलएचएल आरएचएल पुट करके हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जब आप एलएचएल निकालोगे तो 3 माइनस मतलब ये फंक्शन लोगे, एक्स की जगह 3 डालोगे तो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज? तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, ये वाले पूरे पार्ट को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, बताओ क्या होगा इसका फैक्टराइजेशन? इसको मिडिल टर्म अगर स्प्लिट करोगे तो एक्स स्क्वायर ये किस में स्प्लिट होगा? माइनस 3x प्लस 2x में स्प्लिट होगा। ऐसा बन जाएगा क्या? ये क्लियर है सबको? तो अब इसके बाद न्यूमरेटर का फैक्टराइजेशन क्या होगा? न्यूमरेटर का फैक्टराइजेशन, x कॉमन निकलेगा तो यहां पर बच जाएगा x माइनस 3, इधर पे प्लस 2 कॉमन निकलेगा तो क्या बच जाएगा? x माइनस 3 डिवाइडेड बाय यहां पर क्या आ रहा है? x माइनस 3। क्लियर? तो फैक्टराइजेशन में आपको एक फैक्टर मिलेगा x माइनस 3, दूसरा फैक्टर मिलेगा x प्लस 2, डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा? x माइनस 3। समझ में आ रहा है क्या सबको मैं क्या कर रहा हूं? अब क्या होगा? x माइनस 3 और x माइनस 3 कट जाएगा, x माइनस 3 और x माइनस 3 कट जाएगा, तो फाइनली आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी इसकी? x प्लस 2। यहां पर ये पूरा हट के इसकी जगह पे क्या बन जाएगा? x प्लस 2। मतलब आपका फंक्शन क्या बन गया? f ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 2 बना। कब बना? जब x नॉट इक्वल टू 3 है। और 5 बना जब x इज इक्वल टू क्या है? 3 है। समझ में आया सबको मैंने क्या किया? अब बताओ एलएचएल लेते समय कौन सा पार्ट लोगे? एलएचएल लेते समय यही वाला आएगा, और एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे? 3, तो कितना आ जाएगा? 5। आरएचएल लेते समय भी यही पुट होगा तो क्या आ जाएगा? 5। और एफ ऑफ 3 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 5। तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ना? समझ में आया सबको ये? ठीक है, तो फर्स्ट वाला फंक्शन होगा कंटिन्यूअस। जल्दी से कंप्लीट करो जिसने नहीं किया। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस लिमिट x टेंस टू 3 माइनस f ऑफ x, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 3, और यहां पर आ जाएगा x प्लस 2। 3 पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा 5, एलएचएल आ जाएगा 5, आरएचएल भी आ जाएगा 5। हो गया सबका फर्स्ट वाला। सेकंड, कंटिन्यूअस या नॉट कंटिन्यूअस? चलो चेक करते हैं। फर्स्ट वाला डिलीट कर दूं क्या पूरा मैं? ओके, सेकंड को सॉल्व करने के लिए पहले तो आप इसका एलएचएल निकालते हो। मान लो एलएचएल एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो इसको हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। 0 माइनस मतलब जब एक्स 0 से छोटा है, फंक्शन की वैल्यू हम कौन सी पुट करेंगे? ये वाली पुट करेंगे। तो क्या आ जाएगा यहां पर? साइन 3x डिवाइडेड बाय x। चेक करो यहां तक सबने किया क्या? लिमिट हो जाएगी x टेंस टू 0। पिछली क्लास में मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, क्या थी प्रॉपर्टी? जो एंगल में है वही क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर में। तो वैल्यू क्या हो जाती है? 1। तो यहां पर अगर एंगल में 3 है तो यहां पर भी मुझे क्या चाहिए? 3। तो वो 3 को मैं बाहर लिख देता हूं मल्टीप्लाई, बैलेंस करने के लिए। क्लियर हो गया? तो ये पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहां से यहां तक की वैल्यू 1। 1 इंटू 3 मतलब कितना आ जाएगा? 3। एलएचएल 3 आएगा। आरएचएल क्या आएगा? आरएचएल भी 3 ही आएगा। आरएचएल भी 3 आएगा। क्यों? क्योंकि आरएचएल में क्या ले लोगे? 0 प्लस लोगे तो उस समय भी सेम वैल्यू होगी। एलएचएल आरएचएल दोनों सेम है, लेकिन क्या एफ ऑफ 0 की वैल्यू सेम है? नहीं है। तो फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। क्या ये क्लियर? कौन से पॉइंट पे? एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, आगे और आता है टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्या फर्स्ट वाला सेकंड वाला ये सब भी, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है तो उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं। ठीक है, थर्ड वाला, ये वाला किसी से बना क्या बताओ? नहीं बना? नहीं, अच्छा ये ई क्या है पता है क्या आप लोगों को? ई एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है।
ई की वैल्यू फिक्स होती है 2.7 के आसपास कुछ होती है, ठीक है। तो कई जगह पे मैथ्स में ई यूज होता है। यहां पर इसका ग्राफ कैसा बनता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, जैसे ई की पावर एक्स है तो उसका ग्राफ ऐसा कुछ बनता है। समझ में आई ये चीज, ठीक है। और इस ग्राफ का मतलब मैं थोड़ा सा समझा दूं, देखो वैसे तो कम यूज होगा लेकिन कभी आ गया तो याद रहना चाहिए। ग्राफ बना लो और नोट करो कुछ पॉइंट, इसका ग्राफ बनाओ, उसका कुछ पॉइंट नोट करो। पहला पॉइंट ये है कि ई की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, ई की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। ये तो पता है किसी की भी पावर में 0 तो वैल्यू क्या होगी 1। दूसरा ये है कि ई की पावर इंफिनिटी है तो उसकी वैल्यू इंफिनिटी होगी। तीसरा है कि अगर ई की वैल्यू माइनस इंफिनिटी है तो इसकी वैल्यू 0 होगी। माइनस इंफिनिटी मतलब देखो इधर पे जा रहा है, एकदम 0 हो रहा है ना माइनस इंफिनिटी पे, और प्लस इंफिनिटी पे कहां पर जा रहा है, वो इंफिनिटी पे जा रहा है। और तीसरा ये कि ई की पावर 1 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2.7 के आसपास कुछ आती है इसकी वैल्यू, ठीक है। एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। इससे ज्यादा इसके बारे में जानने की और कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो फिलहाल हम इस चीज पे आते हैं कि अगर आपको इसका LHL निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो कैसे निकालोगे, इसको लिखोगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। समझ में आ गया सबको ये चीज। अब यहां पर रखोगे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 हो जाएगा, और एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या रख दोगे, ई की पावर 1 बाय एक्स रख दोगे। समझ में आई ये चीज। अब एक्स की जगह पे 0 डालोगे तो क्या हो जाएगा, ई की पावर 1 बाय 0, ऐसे ही होगा। 1 बाय 0 मतलब कितना हो जाएगा, इंफिनिटी, तो ई की पावर इंफिनिटी हो जाएगा। ई की पावर इंफिनिटी कितना होता है, इंफिनिटी, मतलब क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। समझ में आ रहा है सबको ये चीज। तो इसका मतलब इसका LHL और एफ ऑफ 0 क्या ये दोनों सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये 1 है और इधर पे क्या आ रहा है, इंफिनिटी आ रहा है। तो ये दोनों अनइक्वल है, मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट कंटिन्यूअस। कहां पर, एट एक्स इज इक्वल टू 0। शांभवी कुछ डाउट है इसमें, नहीं है समझ में। LHL इंफिनिटी कैसे है, समझ में है। हाँ हाँ, नहीं है जरूरी। LHL अगर इंफिनिटी नॉट डिफाइंड आ रहा है, RHL भी यहां पर क्या जगह इंफिनिटी, मतलब क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। और ये वाली वैल्यू 1 आ रही है, मतलब दोनों डिसकंटिन्यूटी हो गई। समझ में आ रहा है ये चीज। LHL RHL सेम आ रहा है लेकिन एफ ऑफ 0 की वैल्यू अलग आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 4, 5, 6, 7, 8, ये सारे क्वेश्चंस देखते हैं एक बार। हाँ सारे बच्चे इधर ध्यान देना। मैं एक बात जो 50 बार बोलता हूं वो तुम लोग याद नहीं रखोगे, मैं अभी भी जानता हूं, इसलिए लिख रहा हूं यहां पर। 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला कितने बच्चों को याद है, चलो बताओ। तीन बच्चों ने हाथ उठाया। हाँ चल, सौभाग्य से पहले पूछता हूं। 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, वेरी गुड। 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, ये याद है सबको, याद रखो, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला यहां पर लगेगा जब भी आपको लिमिट के इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ना, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, जब आप इस फंक्शन का LHL निकालने जाओगे, साथ में लिखते भी जाना ना, LHL कौन से पॉइंट पे निकालना है, पहले हमें 0 पे। LHL एट x इज इक्वल्स टू 0, LHL एट x इज इक्वल टू 0, क्या लिखेंगे इसको, लिमिट एक्सटेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंस टू 0, और एफ ऑफ एक्स की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट होगी। ये वाली वैल्यू मतलब 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया सबको। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ये जो प्रॉपर्टी मैंने अभी यहां पर लिखी वो अप्लाई होगी। ये प्रॉपर्टी क्यों अप्लाई कर रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण है ये वाली लिमिट की प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, लिमिट एक्सटेंस टू 0 साइन ax अपॉन ax, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, याद आया। या ax अपॉन ax होल स्क्वायर है तो भी उसकी वैल्यू क्या होगी 1।
होल क्यूब है तो भी उसकी वैल्यू क्या होगी 1। समझ में आएगी चीज। तो यहां पर हम इस पूरे टर्म को क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, यहां पर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब बताओ ये प्रॉपर्टी लगाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा यहां पर। ये नीचे में एक्स स्क्वायर है उसको क्या बनाना पड़ेगा, एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो यहां पर पहले तो मैं इस 2 को बाहर निकालता हूं, इस 2 को पहले हम निकाल देते हैं बाहर, ये 2 आ गया बाहर। लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, ये ऐसा हो गया, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 हो गया। नीचे में ये जो एक्स स्क्वायर है उसको मैं लिख देता हूं एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। समझ में आया मैंने क्या किया? अब थोड़ा सा बताओ कि क्या, अब ये जो मैं जबरदस्ती के यहाँ 2 डाला, एक्स बाय 2 डाला, तो क्या करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए इसको? सीधा बाहर में क्या आएगा, ऊपर में 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा या नीचे में मल्टीप्लाई होगा? नीचे में मल्टीप्लाई होगा। सबको ये क्लियर है नीचे में क्यों? क्योंकि एक्स बाय 2 नीचे में आ रही है तो नीचे में ही आ जाएगा। और ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या बन जाएगा हमारा 1। ये 1 कैसे बना, ये वाली प्रॉपर्टी से। क्लियर हो गया सबको? ये क्या, ये वाला 2 स्क्वायर क्यों आया? यहां पर देखो नीचे में एक्स स्क्वायर अपॉन 4 है तो यहां पर 2 स्क्वायर आना पड़ेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर था, मैंने एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर किया, तो वो 2 स्क्वायर को मैंने इधर कर दिया, बाहर कर दिया, और कुछ नहीं। क्लियर हुआ? तो फाइनली ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो बाहर में हमारे पास क्या बच जाएगा, 1/2, और ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 1 इस प्रॉपर्टी से। तो यहां पर आ जाएगा 1/2 इंटू 1। तो फाइनली आपको एलएचएल कितना मिल रहा है यहां पर, 1/2। क्या ये क्लियर है? आरएचएल क्या मिलेगा बताओ मुझे? यही मिलेगा आरएचएल। क्या बदलेगा, बस यहां पर प्लस आ जाएगा, फंक्शन तो वही आने वाला है, तो आरएचएल भी मिलेगा 1/2। लेकिन एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू है 1। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। फटाफट लिखते चलो, जिनका हो गया अगला क्वेश्चन रेडी है, स्टार्ट करो। Therefore, f of x is not continuous at x is equal to 0। हो गया सबका, हटा दो। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 किसी ने बना लिया क्या? क्वेश्चन नंबर 5, तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू तो 2 है, तो उस पर जो ज्यादा डिस्कशन करना ही नहीं है, हमें सीधे सीधे निकालना है एलएचएल निकालना है। एलएचएल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस, करते जाओ उसको सॉल्व। हेलो, हाँ नमस्ते। जी जी। हम्म। अच्छा ठीक है ना, मैं क्लास ले रहा हूँ अभी, मैं खत्म होता है तो मैं आपको कॉल करता हूँ ना। जी जी, ठीक है, ओके। हाँ ये नोट किया गया सबने, एक बार चेक करो यहां तक। अब इसके बाद बात ये आती है कि ये मॉडेक्स की जगह पे क्या रखे। देखो यहां पर ना अभी मैंने एक चीज फिलहाल गलत की है, मुझे यहां पर अभी माइनस नहीं हटाना चाहिए। क्यों माइनस नहीं हटाना चाहिए? क्योंकि मॉड एक्स की जगह पे दो वैल्यू आती है। मॉड एक्स की जगह पे या तो प्लस एक्स आएगा या फिर माइनस एक्स आएगा। वो क्या आएगा वो डिसाइड होगा यहां से, इसलिए मैंने माइनस नहीं हटाना चाहिए। समझ गए ना? अब बताओ, ये माइनस का मतलब एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो से छोटी है। तो जब एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी होती है तो मॉड एक्स की जगह पे कौन सी वैल्यू लेते हैं, माइनस एक्स। तो मॉड एक्स को हटा के हम उसकी जगह पे क्या ले लेंगे, माइनस एक्स। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यहां पर आ जाएगा एक्स माइनस, इधर पे क्या आ जाएगा, माइनस एक्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2। क्या ये सबको क्लियर हो गया? अब बताओ क्या होगा इसके बाद, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो क्या हो जाएगा, 2x/2। ये 2 कट जाएगा, लिमिट लगाओगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ये 2 कट गया ना, ये ऐसा बचा ना, लिमिट एक्स टेंस टू 0
और यहाँ पर x बचा, x की जगह 0 डाल दिया तो क्या आ जाएगा 0। क्या ये क्लियर हो गया? हाँ। अच्छा, जब RHL लोगे तो क्या बदल जाएगा? RHL लोगे तो क्या बनेगा? प्लस x बनेगा, तब भी x माइनस एक्स क्या आ जाएगा? 0। तो डायरेक्टली वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। लेकिन f ऑफ 0 की वैल्यू क्या दी हुई है? 2। तो फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। समझ गए ना? नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपको सिर्फ एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर कभी ऐसा मॉड में दिया हुआ है तो इसकी कौन सी वैल्यू रखते हैं। एक बार क्या लेते हैं? x माइनस ए, और एक बार क्या लेते हैं? माइनस ऑफ x माइनस ए। ये बार बार आएगा, तुम लोग इसको अवॉइड नहीं कर सकते, इससे बच नहीं सकते। सिर्फ डिफरेंशिएशन में नहीं, इंटीग्रेशन में भी आएगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में भी आएगा, बहुत जगह ये आएगा मॉड वाला, तो उसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। तो एक बार हम प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। प्लस कब लेंगे? जब x क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या? बताओ जल्दी। a, क्योंकि अंदर में x माइनस ए है। और लेस देन क्या हो जाएगा? लेस देन a में क्या ले लेंगे हम? नेगेटिव। समझ गए ये चीज? ठीक है। अब ये क्यों काम आएगा? क्योंकि जब आप यहां पर LHL लोगे, a का LHL लोगे तो उसकी जगह पे नेगेटिव डालोगे। RHL लोगे तो मॉड हटा के उसकी जगह पे क्या डालोगे? पॉजिटिव डालोगे। समझ में आ रहा है ये चीज? ठीक है। नहीं समझ में आया तो इधर देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पर हम लेते हैं, सबसे पहले RHL से शुरुआत करता हूं। RHL एट x इज इक्वल टू a, तो क्या हो जाएगा? ये लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ x। तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ x की जगह पे लिख देता हूं मॉड x माइनस ए अपॉन x माइनस ए। यहां तक समझ में आ गया सबको? अब देखो ये मॉड हटेगा और हटने के बाद पॉजिटिव आएगा। क्यों पॉजिटिव आएगा? क्योंकि ऊपर में एक्स ए प्लस लिखा हुआ है, ए से बड़ा नंबर है। मतलब ये बन जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए बन जाएगा, और यहां पर आ जाएगा एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए। समझ गए ना क्या हुआ? ये दोनों कट जाएगा, कटेगा तो क्या बचेगा? 1। तो RHL की वैल्यू आपके पास क्या आई? 1। ठीक है, ठीक है। RHL 1 आया, ये भी 1 आ रहा है, तो अभी तक ऐसा दिख रहा है कि ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। लेकिन LHL की वैल्यू क्या आने वाली है? -1। ऐसे ही निकाल लिया। ठीक है। एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, तो क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए हो जाएगा, और एफ ऑफ एक्स की जगह पे आ जाएगा मॉड मॉड एक्स माइनस से अपॉन एक्स माइनस से। फिर अब मॉड हटेगा तो माइनस ऑफ एक्स माइनस से अपॉन एक्स माइनस से। लिमिट एक्स टेंस टू ए हो जाएगा, फिर ये दोनों टर्म्स कट जाएंगे, फाइनली आपके पास बचेगा -1। तो फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। समझ गए ना सभी? अब थोड़ा सा स्पीड पकड़ते हैं, ये क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। बताओ तो LHL क्या आएगा? कहां पे चेक करेंगे ये बता दो। कंटिन्यूटी कहां पर चेक करेंगे? 1 पे। 1 पे LHL क्या आएगा? 1 पे LHL आएगा 2। समझ गया ना? 2 क्यों आएगा? ये वाला फंक्शन लेंगे 1 माइनस में, तो 1 + 1 हो जाएगा 2। RHL कितना आ जाएगा? 1। LHL RHL इक्वल है क्या? नहीं। तो फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस कहां पर? x इक्वल टू 1 पे। समझ गए? अगला वाला बताओ। x इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी है? 1। 0 माइनस पे जाओगे, 0 माइनस मतलब ये वाला, तो यहां पर वैल्यू कितनी आएगी बताओ? 0 आएगी कि -1 आएगी? 0 आएगी। समझ गए ना? और 0 प्लस पे जाओगे तो भी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। तो फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। सबको क्लियर? नोट कर लो जो जो नोट करना है, फिर मैं हटा रहा हूं, आगे के क्वेश्चन पे जाएंगे। हटा दूं इसको फिर मैं?
तो कौन से क्वेश्चन नंबर तक कर लिया हमने? 8। आगे बढ़ते हैं 9। हाँ, अब थोड़ा थोड़ा डायरेक्ट करते हैं। यहां पर देखो, यहां पर क्या दिख रहा है? साइन 2x अपॉन क्या है? 5x। LHL लगाएंगे या RHL लगाएंगे, दोनों में यही फंक्शन लगेगा। और फंक्शन के सामने में क्या आ जाएगा? लिमिट एक्सटेंड्स टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। समझ गए ना ये चीज? तो क्या करना पड़ेगा? 5 को बाहर निकालना पड़ेगा। तो यहां से 5 हट के क्या हो गया? यहाँ पर 1/5। और इधर पे 2 बनाना पड़ेगा, तो इंटू 2, और इधर पे भी क्या हो जाएगा? इंटू 2। तो ये LHL की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/5। RHL भी कितना आएगा? 2/5। और f(0) की वैल्यू क्या है? k। तो आंसर क्या आ जाएगा? k का 2/5। क्या ये सबको क्लियर हो गया? एक बार कंफर्म कर दो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी बन जाएगा। कंटिन्यूअस है ए पे, 2 पे, और a की वैल्यू निकालनी है। क्या होगा? हाँ, ऐसी ओरली बता दो, क्या बनेगा? LHL निकालते समय x की जगह पे क्या डाल दोगे? 2। तो ये क्या बन जाएगा? 2a + 5। RHL के लिए x की जगह पे 2 डालोगे तो 2 - 1 मतलब कितना हो जाएगा? 1। तो 2a + 5 = कितना हो जाएगा? 1। तो 2a = कितना होगा? -4। और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2। समझ गए ना सभी? ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन अभी साथ में बनाओ, ये वाला क्वेश्चन। ये इस टाइप का क्वेश्चन कल भी एक आया था, हमने अवॉइड कर दिया था। ये वाला था एग्जैक्टली, ये एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन। ठीक है, उसी के जैसे एक आधा और क्वेश्चन लिया मैंने। 11 12। हटा दो क्या इसको? हो गया तो चलो, 11 12 और 13, ये 3 क्वेश्चन अभी हम जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। तो जब आप क्वेश्चन नंबर 11 पे आओगे, LHL निकालोगे एट x = 0। तो क्या हो जाएगा? LHL एट x = 0, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस f(x) हो जाएगा। फिर f(x) की वैल्यू रखोगे। क्या रखोगे? f(x) की वैल्यू क्या रख रहे हो? mod x इंटू कॉस 1/x। अच्छा, अभी 0 माइनस रख देते हैं ना, अभी ऐसा कर देते। अब मॉड हटाना है, मॉड हटाओगे तो फिर क्या रखोगे? -x। 0 माइनस है ना, मतलब x 0 से छोटा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? -x। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू ये हो जाएगा 0, और इधर पे क्या आ जाएगा? -x इंटू कॉस 1/x। शाम्भवी क्लियर? माइनस क्यों रखा? ठीक है। हाँ, अब क्या करेंगे बताओ? यहां तक सबको समझ में आ गया? x नहीं निकल सकता बाहर, माइनस को सिर्फ निकाल सकता है, एक्स को नहीं निकाल सकता बाहर। क्यों नहीं निकाल सकता बाहर? क्योंकि एक्स है ना, वेरिएबल है ना, तो लिमिट उस पर भी लगेगी। ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता है। समझ गया? अगर 2 3 5 कुछ होता तो निकाल सकते थे। हाँ, तो क्या करें? एल हॉस्पिटल रूल नहीं, वो नहीं लगाना है मान लो। और डिफ्रेंशिएट कर भी नहीं पाएगा आराम से अभी देखो, क्योंकि वो चेन रूल वगैरह उतना याद नहीं होगा। हम्म चलो ठीक है, मैं बताता हूँ, सुनो। लिमिट की सौभाग्य, इधर ध्यान देना। लिमिट की एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर मान लो तो कोई दो फंक्शन है और दोनों पे लिमिट लग रही है, तो दोनों पे अलग अलग लिमिट लगा के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। याद है ये? तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ये हो जाएगा पहला फंक्शन x, इंटू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ये दूसरा फंक्शन हो जाएगा cos 1/x। मतलब हमने दोनों पे अलग अलग कर दिया। ठीक है। अब यहां पर जब मैं लिमिट लगाऊंगा, तो लिमिट लगाने पे ये वाली वैल्यू क्या मिल जाएगी? 0। क्या ये क्लियर हो गया? अगर मैं यहां लिमिट लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? cos 1/0। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब cos 1/0 क्या होता है? इंफिनिटी। और cos के एंगल में कुछ भी आए, cos की वैल्यू क्या होती है? मैं रिपीट कर रहा हूं अपना क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। cos के एंगल में अगर कुछ भी आएगा, तो cos की वैल्यू किस इंटरवल के बीच में होती है? cos की रेंज क्या होती है? सीधा सिंपल, -1 से लेके +1। तो एंगल में चाहे कोई भी नंबर रहे, इस पूरे की वैल्यू किसके बीच में रहेगी? -1 से लेके +1 के बीच में रहेगी। समझ में आई ये चीज?
ये बताने के लिए सिर्फ इसलिए मैंने बताया कि इसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी, ये कोई फाइनाइट वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होगी, एक फाइनाइट वैल्यू होगी। और फाइनाइट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय जीरो अगर होगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। समझ में आई ये चीज, क्लियर हुआ ये चीज? अगर अगर ऐसा होता ना, जीरो इंटू इनफाइनाइट होता तो वो गलत हो जाता, क्योंकि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आता है जीरो इंटू इनफाइनाइट, लेकिन जीरो इंटू फाइनाइट हो सकता है। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो इसका एलएचएल आएगा जीरो, आरएचएल क्या आएगा, आरएचएल भी जीरो आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और x इक्वल टू जीरो पे वैल्यू क्या है इसकी, जीरो, तो मतलब ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस। हाँ, ये फंक्शन हो जाएगा कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, प्रखर इसी यही सारे क्वेश्चन करा रहा हूं, देख लेना रिकॉर्डिंग आगे की। नेक्स्ट फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, बताओ जल्दी। एलएचएल जब लोगे तो एलएचएल लेते समय देखो ये पूरा का पूरा फंक्शन यहां पर आ जाएगा, समझ रहे हो ना, ऐसे ही आएगा ना। एलएचएल जब लोगे यही पूरा का पूरा हिस्सा आएगा, फिर एक्स स्क्वायर को अलग कर देना, साइन वन अपॉन एक्स को अलग कर देना, एक्स स्क्वायर पे जब लिमिट डालोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। और साइन वन अपॉन एक्स मतलब साइन वन बाय जीरो हो जाएगा, वन बाय जीरो मतलब जो भी वैल्यू होगी वो फाइनाइट आएगी, तो फाइनाइट इंटू जीरो मतलब वैल्यू क्या आएगी, जीरो। तो ये वाला फंक्शन भी इसी मेथड से क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस होगा। समझ में आया सबको ये चीज? तो ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। किसी को डाउट है तो पूछ लेना 12th नंबर में। सीमा बताना है क्या, क्लियर? नेक्स्ट 13th नंबर स्टार्ट करो, फिर 13 नंबर क्वेश्चन। हाँ कुछ बोलना चाह रहा है, बोल। हाँ, एक लिमिट वाला प्रॉपर्टी जो पढ़ते थे हम, ए टू द पावर एन माइनस एक्स टू द पावर एन अपॉन वाला ना। हाँ हाँ हाँ, वाली प्रॉपर्टी लगा सकते चाहो तो। ये 12 हटा रहा हूं ना, ये वाला पूरा। 13th क्वेश्चन एक बार देख लेना। 13th क्वेश्चन। सो 13 क्वेश्चन में ये देख लो कि एफ ऑफ वन की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, एफ ऑफ वन की वैल्यू कितनी गिवन है, एन माइनस वन, ये तो डायरेक्टली गिवन है, एफ ऑफ वन की वैल्यू एन माइनस वन। अब आप निकालोगे एलएचएल या आरएचएल, दोनों सेम आएगा एट एक्स इज इक्वल टू वन पे, क्योंकि दोनों पे यही फंक्शन है। तो यह आ जाएगा लिमिट एक्सटेंस टू जीरो, नहीं एक्सटेंस टू वन है, सॉरी जीरो नहीं वन है, और यहां पर क्या आ जाएगा, वन माइनस एक्स टू दी पावर एन अपॉन वन माइनस एक्स, ऐसा हो जाएगा। यहां तक क्लियर है सबको? अब मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूं, 11th की एक प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी ये थी लिमिट एक्सटेंस टू ए एक्स टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, तो उसकी वैल्यू होती थी एन ए टू दी पावर एन माइनस वन। ये लिमिट वाले चैप्टर के अंदर आता था ये वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी याद नहीं है कोई बात नहीं, उसके बिना भी बना सकते हो, तरीका बताता हूं कैसे। ठीक है, तरीका ये है, पहले तो उस प्रॉपर्टी के फॉर्म में अरेंज करने के लिए दोनों में से क्या करोगे, माइनस कॉमन निकाल के काट दोगे, दोनों मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। इसमें ये क्लियर सबको यहां तक? ठीक है, न्यूमरेटर से माइनस निकाला, डिनोमिनेटर से निकाला, काट दिया। अब देखो प्रॉपर्टी याद नहीं है तो क्या करो, डिफ्रेंशिएट कर दो इस वाले पार्ट को। डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, वन। और यहां पर क्या लगा, लिमिट एक्सटेंस टू वन। अब x की जगह पे वन डाल दो तो क्या हो जाएगा, n वन की पावर n माइनस वन। यही प्रॉपर्टी बन जाती, n a की पावर n माइनस वन, वही बना है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो अगर ये प्रॉपर्टी भूल जाते हो ना तो इसको डिफ्रेंशिएट करके चेक कर सकते हो क्या होती थी प्रॉपर्टी। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, n। तो LHL की वैल्यू मिल जाएगी n, RHL की वैल्यू भी क्या मिलेगी, n। लेकिन f ऑफ वन की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, n माइनस वन। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। समझ गए ना? आयुष समझ में आ रहा है ना?
हाँ क्या हुआ निखिल? ये 13th नंबर क्वेश्चन था। अब आगे आते हैं 14, 15, 16 पे। हटा दो इसको मैं। हम्म। ओके, तो ये 14, 15, 16। 14 चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 14, ये फंक्शन कंटिन्यूस है जीरो पे और के की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले एलएचएल निकाल के दिखाओ जल्दी, एलएचएल आरएचएल दोनों निकालो उसका। अब तुम लोग समझ चुके हो, निकाल सकते हो, मैं जानता हूं, निकालो अब ठीक से। और कुछ प्रॉब्लम आएगी तो पूछो। एलएचएल के लिए भी ऊपर वाला फंक्शन लेंगे, आरएचएल के लिए भी ऊपर वाला फंक्शन लेंगे। सिर्फ मॉड एक्स की जगह पे क्या पुट करना है वो चीज बदल जाएगी। एलएचएल में मॉड एक्स की जगह क्या लेंगे? माइनस एक्स। क्या हुआ? अरे भाई एक्स कॉमन निकालना नीचे में से और काटना ऊपर वाले से। पहले जो बोल रहा उतना कर, उसके बाद फिर आगे देख। आया क्या? हाँ, एल एच एल एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, तो यहां पर आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस, और एफ ऑफ एक्स की जगह पे आ जाएगा एक्स अपॉन मॉड एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर। यहां तक सबने किया? उमाश बन रहा है? फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स अपॉन यहां पर माइनस एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर। चेक करो यहां तक किया गया सबने? फिर क्या कर रहे हो? एक्स कॉमन निकाला डिनोमिनेटर से, एक्स कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? माइनस वन प्लस टू एक्स। कंफर्म करो यहां तक आया सबका? फिर क्या होगा? ये दोनों कट गए। फिर एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे जीरो, तो क्या हो जाएगा? वन अपॉन माइनस वन प्लस टू इंटू जीरो। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा? माइनस वन। एल एच एल, आर एच एल निकालो अब जल्दी। आर एच एल क्या आ रहा है? वन। आर एच एल सेम ऐसा ही बनेगा, सारी चीजें सेम रहेगी, बस यहां पर क्या हो जाएगा? मॉड एक्स की जगह पे प्लस एक्स आएगा, इसलिए उसकी वैल्यू आ जाएगी वन। एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जब एक्स जीरो से बड़ा है तो प्लस एक्स लेंगे, जब जीरो से छोटा है तो माइनस एक्स। यहाँ जीरो माइनस का मतलब वही होता है, मॉड एक्स मतलब एक्स जीरो से छोटा है, जीरो प्लस का मतलब जब एक्स जीरो से बड़ा है। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ पर एक्स और ये आ जाएगा, एक्स कॉमन निकलेगा तो वन प्लस टू एक्स हो जाएगा, ये कटेगा तो वैल्यू आ जाएगी वन। हाँ, तुम लोग फाइनल आंसर नहीं बताया लेकिन। नॉट कंटिन्यूस तो नहीं, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो आंसर क्या होगा? नो वैल्यू ऑफ के विल एग्जिस्ट, के की कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। नहीं आया समझ में? हाँ, तो भाई ये है एलएचएल और आरएचएल जो है दोनों अलग आ रहा है, मतलब डिसकंटिन्यूअस है। अब के की वैल्यू कुछ भी ले ले हमेशा ही क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा, ये मतलब है। तो के की कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी जो इसे कंटिन्यूअस बना सके। अगला क्वेश्चन ट्राई करो, इसके लिए मैं हिंट दूं या बनाओगे? अच्छा, ये तो वाला क्वेश्चन है ना जो पिछली क्लास वाला क्वेश्चन है। नहीं, इसको मैं कराऊंगा, 15 मैं कराऊंगा। तुम लोग एक काम करो, 16 को ट्राई करो, 16 को। एक सेकेंड।
कौन सा ट्राई कर रहे हो? 16 कर रहे हो ना ट्राई? अब 16 वाला क्वेश्चन अगर कोई बच्चा ठीक ठाक तरीके से भी पढ़ा हुआ 11 तो बना सकता है। कौन सा चैप्टर है पूछ रहा है? 11 में तो एक ही चैप्टर था जिसमें लिमिट आता था, और किसमें आता था? हाँ। चलो बताओ। देखो यहां पर लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x, ये निकालना पड़ेगा हमें। समझ में आ रहा है ये चीज? अब यहां पर क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x के प्लेस पे कौन सी वैल्यू आएगी? तो ये आएगा 2x प्लस 3 साइन x डिवाइडेड बाय 3x प्लस 2 साइन x। यहां LHL RHL वाला प्रॉब्लम नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि फंक्शन एक ही डिफाइंड है, उसमें ऐसा नहीं है एक्स ग्रेटर देन पे ये लेस देन पे ये। समझ गए ना ये चीज? तो डायरेक्टली हम लिमिट निकालेंगे। ओके, यहां तक क्लियर हो गया सबको? हाँ, अब इसके बाद यहां पर लगानी है हमें ये प्रॉपर्टी लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाय एक्स वाली। क्या होती है इसकी वैल्यू? 1। तो ये प्रॉपर्टी लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ? इसमें ऊपर और नीचे दोनों को किससे डिवाइड कर देंगे? एक्स से। तो क्या हो जाएगा? ये 2x बाय एक्स प्लस 3 साइन एक्स बाय एक्स। समझ में आया? होल अपॉन ये क्या आ जाएगा? 3x बाय एक्स प्लस 2 साइन एक्स बाय एक्स। क्या यहां तक समझ में आया सभी को? क्या किया मैंने? ऊपर और नीचे दोनों को x से डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? अब ये लिमिट चला गया अंदर। लिमिट में ये होता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो न्यूमरेटर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो क्या हो गया? लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहां पर आ गया 2 प्लस लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहां पर आ गया 3 साइन एक्स बाय एक्स। क्या ये समझ में आया सभी को? डिनोमिनेटर में भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो क्या हो गया? लिमिट एक्स टेंस टू 0, इधर पे आ गया 3 प्लस लिमिट एक्स टेंस टू 0, इधर पे क्या आ गया? 2 साइन एक्स अपॉन एक्स। ओमान समझ में आ रहा है क्या? हाँ, फिर क्या होगा बताओ जल्दी? ये वाला पूरा वैल्यू कितना होगा? ये वाला वैल्यू कितना होगा? 2 का 2 ही रहेगा। यहां पर क्या होगा? 3 आ जाएगा बाहर, और साइन एक्स बाय एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। मतलब ये आ जाएगा 2 प्लस 3 इंटू 1, और नीचे में क्या होगा? 3 प्लस ये 2 आ जाएगा बाहर, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1। समझ में आ रहा है ये चीज? तो क्या आ रहा है? 5 अपॉन 5। तो वैल्यू क्या आ रही है इसकी? 1। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो LHL RHL ये इस फंक्शन की लिमिट क्या आ रही है? 1। और फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है x इक्वल्स टू 0 पे। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 पे, तो 0 पे उसकी लिमिट और 0 पे उस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी। क्या ये समझ में आ गया? तो 0 पे फंक्शन की लिमिट हमारे पास आई है 1, 0 पे फंक्शन की वैल्यू मतलब f ऑफ 0, तो f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ गई? 1। क्या ये क्लियर हो गया सारे बच्चों को? ठीक है, हटा दू ये वाला पूरा पार्ट फिर। चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। पिछले क्लास में मैंने बताया अगर एमसीक्यू में आए तो कैसे बनाना है उस क्वेश्चन को, 15 को एल हॉस्पिटल रूल लगा के डिफरेंशिएट करके। लेकिन अगर ये सब्जेक्टिव में आएगा तो कैसे बनेगा? ध्यान देना, इसका सिर्फ मैं LHL निकालना बताता हूं। LHL एट एक्स इज इक्वल टू, कौन से पॉइंट में निकालना है? एट एक्स इज इक्वल टू, देखो जल्दी, पाई बाय 2। तो क्या होगा जल्दी बोलो? लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 माइनस, और इधर पे क्या आ जाएगा? f ऑफ x। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसके बाद ना आप क्या करो, इसको लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 लिख दो, और यहां पर ना f ऑफ x की जगह पे वैल्यू डाल दो। क्या ये? k cos x डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब देखो, मुझे लगानी है ये प्रॉपर्टी लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x, वो कितना हो जाता है? 1। ये प्रॉपर्टी लगाने के लिए मेरे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स है? पहली चीज तो यहां पर पाई बाय 2 की लिमिट जा रही, लेकिन मुझे लिमिट क्या चाहिए? 0 की। दूसरा ये कि यहां पर कॉस आ रहा है, मुझे क्या चाहिए? साइन। तो मुझे पूरे लिमिट को बदलना पड़ेगा।
अब मैं एक नया वेरिएबल अज्यूम करूंगा और नया वेरिएबल क्या होगा, मैं ले लूंगा y, नया वेरिएबल ले लूंगा y, और y की वैल्यू मैं लूंगा यहां पर π/2 माइनस एक्स। एक नया वेरिएबल ले लूंगा y जिसकी वैल्यू हो जाएगी π/2 माइनस एक्स, या फिर मान लो x की वैल्यू मैं क्या ले रहा हूं π/2 माइनस वाई, ऐसा समझ लो, दोनों का मतलब ही सेम हुआ ना, x इधर जाएगा और y इधर जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो गई π/2 माइनस वाई। क्या ये समझ में आया? अब इससे क्या होगा, इससे ये चीज होगा कि अगर x टेंस टू π/2 लेता हूं, मतलब x की वैल्यू अगर मैं π/2 लेता हूं, तो y की वैल्यू क्या आएगी? लिमिट बदलने का मतलब समझते हो कि नहीं, कैसे लिमिट बदल रहा हूं मैं? मैंने वेरिएबल बदला, x को क्या पुट कर दिया π/2 माइनस वाई, तो y आ गया π/2 माइनस एक्स। अब अगर मैं x π/2 लूंगा, x की वैल्यू π/2 डालूंगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी? जीरो। तो लिमिट चेंज हो जाएगी और y टेंस टू क्या हो जाएगा यहां पर? जीरो। अब पूरा वेरिएबल y के टर्म्स में आ जाएगा, तो लिमिट यहां पर मैं क्या लिख दूंगा? y टेंस टू जीरो। क्या ये समझ में आ गया? ये k तो कांस्टेंट है, वो तो वैसे ही रहेगा cos। ये x की जगह पे क्या लिखूंगा बोलो जल्दी? x की जगह पे क्या लिखूंगा? ये x की जगह पे लिखूंगा π/2 माइनस वाई। क्या ये समझ में आ गया सबको? डिनोमिनेटर में क्या चेंज होगा बोलो जल्दी? ये पाई का पाई रहेगा -2, एक्स की जगह पे क्या आएगा बोलो जल्दी? एक्स की जगह पे क्या आएगा? π/2 माइनस वाई। यहां पर भी आ जाएगा π/2 माइनस वाई। क्या ये समझ में आ गया सबको? अब देखो क्या हो जाएगा, ये लिमिट y टेंस टू जीरो, यहां पर k एज इट इज, ये क्या बनेगा बोलो जल्दी? cos π/2 माइनस वाई, cos 90 माइनस थीटा। ये 11th में पढ़े हो ना ट्रिग्नोमेट्री में, cos, हंस रहा है सर, cos 90 माइनस थीटा, ये वाला सारा पढ़ते थे, याद आया कि नहीं? ये π/2 ये होता है, π/2 माइनस थीटा, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अपने कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट होगा, क्योंकि π/2 मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये सब चीज याद करो, ठीक है? तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? साइन y बन जाएगा। समझ में आएगा सबको ये? फिर डिनोमिनेटर में क्या होगा? ये पाए माइनस ये मल्टीप्लाई होगा इससे, क्या बनेगा? माइनस पाई बन जाएगा, और फिर ये मल्टीप्लाई होगा इससे +2y। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब माइनस पाई प्लस पाई कट जाएगा, क्या बचेगा यहां पर? लिमिट y टेंस टू जीरो k साइन y डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? ये 2y। क्या ये क्लियर? k/2 को निकाल लो बाहर, तो k/2 आ गया बाहर। क्या बचा यहां पर? लिमिट y टेंस टू जीरो, क्या हो रहा है? ये साइन y डिवाइडेड बाय y। क्या ये समझ में आ रहा है? तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो LHL कितना आएगा? 1। RHL भी कितना? नहीं 1 नहीं, सॉरी, k/2। LHL RHL दोनों कितना आ जाएगा? k/2। और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 3 के इक्वल। तो k/2 इज इक्वल टू क्या लेंगे? 3, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। ठीक है? सब्जेक्टिव में आएगा तो ऐसे सॉल्व करना है, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो डिफरेंशिएट करके। ठीक है? तो सीबीएसई वाले बच्चों के में ऑब्जेक्टिव का ही चांस है, 90% चांस है। आईएससी और सीजी वाले बच्चों के में सब्जेक्टिव आ सकता है। ठीक है? ठीक है। नहीं, लास्ट ईयर तक तो सेम था, लेकिन अभी रिसेंट कुछ हुआ है क्या? अभी का अपडेटेड नहीं हूं मैं। कुछ नोटिफिकेशन आया है क्या? मुझे भेजना एक बार, अगर कुछ कट हुआ है कुछ चैप्टर्स। ओके, भेजना मुझे एक बार। सीजी में सिलेबस ज्यादा रहता है, लेकिन चेकिंग इजी होती है। आईसीएससी में भी सिलेबस ज्यादा रहता है, लेकिन उसमें ऑप्शंस ज्यादा मिलते हैं, क्वेश्चंस का बहुत सारे रहते हैं, सिलेक्शन इनसे ज्यादा रहता है सीबीएसई वाले बच्चों से। ये हटा दूं, हो गया तो सबका? जिनका हो गया भाई वो स्टार्ट करो 17, 18, 19। ओके भाई, 17 के लिए हिंट चाहिए? हो जाएगा।
17 को देखो, उसको ना डबल एंगल फॉर्मूला लगाओ वाला। अभी हम इसने बताया ना 1 माइनस कॉस एक्स का, 1 माइनस कॉस एक्स का क्या था, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 वाला लगाओ। क्या ये हटा दूं पूरा मैं? अगर किसी को याद नहीं आ रहा कौन सा फॉर्मूला तो लिख के बता रहा हूं, देखो इधर। LHL स्टार्ट करते हैं पहले। एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो यहां पर आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स, 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, तो आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स की जगह पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाय 8x स्क्वायर। ओके, अब इसके बाद मैं ये फॉर्मूला बोल रहा था 1 माइनस कॉस एक्स का, ये क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, याद आया ये फॉर्मूला? तो यहां पर लगेगा लिमिट एक्स टेंस टू 0, क्या बनेगा बताओ न्यूमरेटर? 2 साइन स्क्वायर 2x, समझ में आया ये? 2 साइन स्क्वायर 2x, शाम्भवी क्लियर? हाँ, डिवाइडेड बाय में क्या आ रहा है यहां पर 2 इंटू 2x का होल स्क्वायर। क्या किया मैं, समझ में आया? हाँ, अब ये 2 और ये 2 को काट दो, तो क्या बन जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये हो जाएगा साइन 2x बाय 2x का होल स्क्वायर। क्या यहां तक सबको क्लियर? 1 LHL 1, RHL भी आएगा 1, K की वैल्यू भी आएगी 1, खत्म। इनवर्स का तो बहुत सारा क्लास हुआ है, शायद मैं कॉपी नहीं कर पाऊंगा, या एक आध हो सकता है रिकॉर्डिंग मिस हुआ होगा, देखता हूं मैं, डालता हूं उसको। एटीन में भी वही फॉर्मूला लगेगा ना? हाँ, अच्छा, लेकिन ये एमसीक्यू में शॉर्टकट तरीके से करना, समझ गए ना सीबीएसई वाले बच्चे? क्या करोगे, 1 का डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है, ये हो गया 0, और माइनस कॉस 4x का क्या होगा बोलो जल्दी, माइनस साइन 4x इंटू 4, समझ में आया कि नहीं? ये तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 4 साइन 4x, ऐसा हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में बताओ उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 16x, ऐसा ही होगा। फिर ये 4 1 जा 4 4 जा 16 कटेगा, और क्या हो जाएगा साइन 4x डिवाइडेड बाय x, ऐसा बनेगा। समझ में आई ये चीज? हाँ, साइन 4x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4x, फिर इसकी वैल्यू लिमिट लगा देना, अब क्या हो जाती है 1 हो जाती है, ठीक है। अगर अभी भी प्रॉपर्टी भूल जाओगे तो दोबारा वही तरीका लगा सकते हो, दोबारा डिफरेंशिएट कर दो ऊपर वाले को, तो ऊपर वाले का दोबारा डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, साइन का क्या होता है कॉस, तो 4 cos 4x, और नीचे वाले का क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, cos 4x बचेगा, लिमिट लगा देना, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। समझ में आ गई ये चीज? हाँ, 18 वाले को इसी तरीके से बनाओ, तो जो मैं अभी बताया प्लस माइनस 4 आ रहा है। एटीन वाले को ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, माइनस cos 2kx का हो जाएगा माइनस साइन 2kx इंटू 2k डिवाइडेड बाय नीचे एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, फाइनली आपको मिलेगा 2k इंटू साइन 2kx डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2x, ये 2 और ये 2 कट जाएगा,
तो ये बन जाएगा k इंटू साइन 2kx अपॉन x। समझ में आ गया यहां तक सबको? फिर से ऊपर और नीचे डिफरेंशिएट करो, तो ये k एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन का क्या हो जाएगा, cos 2kx इंटू 2kx का क्या हो जाएगा 2k डिवाइडेड बाय x का क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब ये बाहर में आ गया 2k स्क्वायर और इधर पे आ गया cos 2kx आ गया। समझ में आ रहा है सबको यहां तक? अब लिमिट डाल दो, लिमिट क्या डालोगे, 0। cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये क्या आ जाएगा 2k स्क्वायर, 2k स्क्वायर और इसकी वैल्यू आ गई 8, तो 2k स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 8, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4, तो k की वैल्यू आ जाएगी +-2। समझ में आ गया ये चीज? ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन, न कोई में भी ले, किसी में भी ले लो, इक्वल फर्क नहीं पड़ेगा उससे आंसर में। हो गया, हटा दूं? चलो नेक्स्ट, अब कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस दे रहा हूं, देखो इधर ध्यान देना। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ, ये 2013 के एग्जाम में आया था। f ऑफ x इज इक्वल्स टू रूट ओवर 1 प्लस पी एक्स माइनस रूट ओवर 1 माइनस पी एक्स होल अपॉन x and 2x plus 1 upon x minus 2 when x is greater than or equals to -1 less than 0, x is greater than or equals to 0 less than or equals to 1। ठीक है, और क्वेश्चन में ये लिखा है कि ये कंटिन्यूअस है, -1 से +1 के बीच में p की वैल्यू निकालना है। ये ऐसे क्वेश्चन ना पिछले 4-5 सालों से नहीं आ रहे हैं, इसलिए तो मैं ज्यादा उसको कराता नहीं, नहीं तो ऐसे वाले भी बहुत सारे क्वेश्चन है, एक मैं बता देता हूं इसलिए। ठीक है, स्टार्ट करें। तो सबसे पहले ना देखो यहां पर LHL निकालते हैं एट x इज इक्वल टू 0, तो लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा 0 माइनस f ऑफ x, ऐसे ही होगा LHL के लिए, LHL एट x इज इक्वल टू 0। फिर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, f ऑफ x की जगह पे क्या आ जाएगा √1 प्लस पी एक्स माइनस √1 माइनस पी एक्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा x। यहां तक समझ में आया सबको? अब क्या होगा, कौन सी आइडेंटिटी? हाँ, कैसे अप्लाई करेंगे वो आइडेंटिटी? नहीं, रैशनलाइज करेंगे, न्यूमरेटर को रैशनलाइज करेंगे, न्यूमरेटर को रैशनलाइज करेंगे तो ये जो टर्म है ना, इसी के साइन को चेंज करके उससे मल्टीप्लाई करेंगे। और ऐसे वाले जितने भी क्वेश्चन है ना, सभी में यही कंसेप्ट लगता है, रैशनलाइज कर दो। यहां तक समझ में आया? इसके बाद क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में ये प्लस है, सॉरी, डिनोमिनेटर में x इंटू √1 प्लस पी एक्स प्लस √1 माइनस पी एक्स, ऐसा हो जाएगा। और न्यूमरेटर में सीधा कर दू ना, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब ये आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस पी एक्स आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया सबको? चेक कर लो। फिर क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, डिनोमिनेटर, अच्छा बाहर में लिमिट चल रहा है ना, लिमिट x टेंस टू 0 है, लिमिट x टेंस टू 0 है। डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं कर सकते, जैसा है वैसे ही रहेगा,
√1 प्लस पी एक्स प्लस √1 माइनस पी एक्स। न्यूमरेटर में सिंप्लीफाई होगा, क्या सिंप्लीफाई होगा, +1 -1 कट जाएगा, पी एक्स प्लस पी एक्स मतलब क्या बन जाएगा, 2px। चेक करो यहां तक क्लियर हो गया सबको। फिर क्या होगा, x और x कट जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ सबको। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को रैशनल करेगा, फिर वही मिल जाएगा, तो कुछ ऊपर में मिल रहा था। कुछ नहीं कर, सीधे लिमिट लगा दे, सीधे लिमिट लगा दो, x की जगह पे क्या डाल दो, 0 डाल दो, तो क्या हो जाएगा, 2p अपॉन √1 प्लस 0 प्लस √1 माइनस 0। समझ में आ रहा है। तो क्या आ जाएगा, ये 2p अपॉन क्या आएगा, 2p अपॉन बताओ तो, 2p/2। ये √1 1 हो गया, ये √1 1 हो गया, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो ये दोनों कट जाएगा, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, p। एक बात बताओ, अगर इसमें किसी कैलकुलेशन में किसी को डाउट है तो पूछ लो। सीमा क्लियर। हाँ लक्ष्य, नहीं है समझ में, ठीक। LHL हो गया, RHL क्या होगा, RHL के लिए कौन सा पार्ट लेना पड़ेगा हमें, RHL at x is equals to 0। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f of x। बताओ f of x की जगह पे क्या डालेंगे, 2x + 1 अपॉन x - 2। फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, सीधे लिमिट लगा देना। तो क्या हो जाएगा, 0 + 1 अपॉन 0 - 2 मतलब कितना हो जाएगा, -1/2। समझ में आ गया ये चीज। सीधे लिमिट लगा सकते हम हर बार, सिर्फ कब हमें करना पड़ता है ऐसा सब, जब नीचे 0 आ जाता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म आता है। यहां इसलिए रैशनलाइज करना पड़ा क्योंकि अगर मैं सीधे लिमिट लगाता तो नीचे वाला पार्ट 0 हो जाता। समझ गए ना ये चीज। तो फाइनली p की वैल्यू आ जाएगी -1/2। ओके, बाकी और इसी टाइप के और कुछ कुछ क्वेश्चन हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, सब में सेम कंसेप्ट लगता है, रैशनलाइज करने का ये मिल जाता है। अब इसमें ना एक नोट, 2-3 नोट पॉइंट्स बस लिख लो। इसके अलावा तो बाकी सब मैंने क्वेश्चन करवा दिए जितने भी कंटिन्यूटी के हैं। तो पहला नोट पॉइंट है, शायद हो सकता है आपने लिखा भी हो, इफ f एंड g आर, ये लिखा है कि f और g कंटिन्यूअस है तो उनका एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन लिख लिया ना, ये सब कंटिन्यूअस होगा। साइन और कॉस ये दोनों कंटिन्यूअस होते हैं। इसके अलावा सेक, कोसेक, टेन और कॉट ये भी कंटिन्यूअस होते हैं इन इट्स डोमेन, सारे डोमेन पे। ठीक है, मतलब नॉट डिफाइंड होता है ना जहां पर, वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। ठीक है, और मॉड, हर एक फंक्शन का मॉड भी क्या होगा, हमेशा कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है। कभी भी a की पावर x, 2 की पावर x, 3 की पावर x आएगा तो वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस। हालांकि ऐसा पूछा नहीं है कभी, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं, ध्यान में रहे। और एक लास्ट, क्या एक क्वेश्चन बोल रहा था मैं, साइन मॉड एक्स कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि मॉड एक्स अलग से कंटिन्यूअस है, साइन एक्स अलग से कंटिन्यूअस है, तो दोनों का कंपोजिशन भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। ठीक है, और ये क्या होगा बताओ तो, साइन, साइन ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा, इसका मतलब क्या है, जीएफ, जीएफ कौन सा फंक्शन था, कंटिन्यूअस कि डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, तो इसलिए साइन ये भी क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। समझ गए ना। अगर कंटिन्यूअस के अंदर में डिसकंटिन्यूअस आ जाए तो भी क्या हो जाएगा, वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन साइन मॉड एक्स कौन सा फंक्शन हो जाएगा, कंटिन्यूअस होगा। ये दिमाग में रखना, और अभी नहीं 10 महीने बाद भी रखना। ठीक है ना, तब भी रहना चाहिए, या लिखा हुआ रहना चाहिए कहीं ना कहीं। इसके अलावा और एक कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा था मैं, अच्छा ये बताओ, मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स -1 क्या होगा, कंटिन्यूअस कि डिसकंटिन्यूअस,
कंटिन्यूअस, क्योंकि सारे मॉड फंक्शन क्या होते हैं कंटिन्यूअस, तो उनका एडिशन सब्सट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस। ठीक है, तो कंटिन्यूटी लगभग मैंने पूरा अच्छे से करवा दिया है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है ना? अगली क्लास में डिफरेंशियबिलिटी पढ़ाऊंगा, वो छोटा है इससे काफी, ठीक है, तो वो एक क्लास में हो जाएगा, और उसके बाद मैं इसका टेस्ट लूंगा कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का, तो प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, ठीक है? ओके।